हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर विशाली भाई। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। सो टुडे in continuation with class 11th, we'll start with the chapter hydrocarbons. So when I start with this chapter hydrocarbons, we say that hydrocarbons means the compounds of carbon and hydrogen. So these are those compounds which consist of these two elements, carbon and hydrogen. And when we talk about their classification, we classify hydrocarbons as acyclic. Acyclic means one which is open chain, and cyclic means one which is closed chain. ठीक है. And this acyclic we further classified into saturated and unsaturated hydrocarbons. Where saturated we call them as alkanes, and unsaturated are further classified into alkenes and alkynes. When we move to cyclic we classify them as alicyclic and aromatic. That we'll discuss what aromatic compounds are, we'll discuss in detail. Alicyclic are further again classified as saturated, unsaturated. So again saturated means we call them as, since they are cyclic, so we call them as cycloalkanes. Alkanes I hope आप लोग सब जानते होंगे बच्चे, 10th में पढ़ा हुआ है. Alkanes means having single bond. And unsaturated are further classified into two categories. One is cycloalkene and other is cycloalkyne. So cycloalkenes and cycloalkynes. So this is how we classify. When we talk about aromatic को further हम classified करते हैं as benzenoids and non-benzenoids. So benzenoids which are aromatic having benzene type structure, ठीक है, and non-benzenoids जिनमें बेंजीन की तरह structures नहीं होते. So we'll discuss all these in detail one by one. So this is basically the classification of hydrocarbons. So we'll first start with alkanes. So सबसे पहले हम start करेंगे alkanes के बारे में. So alkanes के बारे में अगर हमें start करना है तो हमें पता होना चाहिए कि alkanes हैं क्या. So अगर हम classification से देखें तो हम कहते हैं ये saturated hydrocarbons हैं. Saturated means which are bonded through single bond. They consist of only single bond between carbon atoms. ठीक है. We call them as paraffins also. हम इन्हें paraffins भी कहते हैं. Paraffins means less affinity. Less affinity means they are very less reactive. And why they are very less reactive? Because इनकी reactivity के लिए इनके पास ना तो multiple bond है ना functional group है. Since they do not have any multiple bond or functional group, and thus they are very less reactive towards any of the reagent, and thus we call them as paraffins. The general formula for alkane is CnH2n plus 2. By taking n is equals to 1, we get the first member as methane. Similarly, if you take n is equals to 2, one more carbon has been increased with 2 hydrogen atoms, so it becomes C2H6, which we call as ethane. So this you must have studied in class 11th. Now after this we'll talk about the methods of preparation of alkanes. Methods of preparation of alkanes. Alkanes को कैसे prepare कर सकते हैं? So very first thing comes is hydrogenation. Hydrogenation किसका? Alkenes and alkynes का. Hydrogenation of alkenes and alkynes means आपने लिया double bond and triple bond. And hydrogenation क्या होता है? Hydrogenation says addition of hydrogen. यानी हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं. हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो बेसिकली होता क्या, सपोज आपने एल्कीन लिया. सो एल्कीन मीन्स having double bond. So when we add hydrogen to it, directly hydrogen does not get added. So we need catalyst. Either we take nickel or palladium or platinum. Any of these catalysts can be taken. हुआ क्या, ये जो pi bond है, this pi bond breaks. ये pi bond टूट जाता है.
सिमिलरली H और H के बीच का बॉन्ड भी टूटता है। सो प्रोडक्ट क्या बना? सो प्रोडक्ट वी गेट इज C सिंगल बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है टूटा, इसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स थे टू कंप्लीट द वैलेंसी, ठीक है। सो ये 2 बॉन्ड्स तो थे, साथ में एक हाइड्रोजन जो ये H2 जुड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे गया और एक हाइड्रोजन इस पे गया, एंड दिस इज हाउ वी गेट एल्कीन्स। सो डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड बनाया। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास एल्काइन है एंड यू ऐड 1 मोल ऑफ H2 in presence of any of this catalyst, we first get alkene, and further adding 1 mole of hydrogen in presence of nickel we get alkane. So the reaction takes place this way. We call this as hydrogenation, which means addition of hydrogen. Now when we talk about the mechanism for this reaction, so इसमें क्या होता है? reaction adsorption होता है। What is adsorption? एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन। ये है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज व्हेन द एक्यूमुलेशन इज लिमिटेड टू सरफेस ओनली। जब एक्यूमुलेशन कोई चीज़ आ रही है तो वो सरफेस पे ही आके रुक रही है, वी कॉल इट एज एड्सॉर्प्शन। सो यहाँ एड्सॉर्प्शन होता है कब? आपके पास सपोज निकल मेटल है और निकल की आपके पास सरफेस है, दिस इज निकल एलिमेंट एंड इसकी सरफेस है। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आते हैं, हाइड्रोजन गैस आ रहा है। दिस हाइड्रोजन गैस कम्स, get bonded through physical or chemical bond with a weak force with the help of by the process of adsorption. अब क्या हुआ? अब आपके पास आया एल्कीन। रिएक्शन तो इन दोनों की है। सो एल्कीन जब ये आया, ये एल्कीन आया, तो इनके बीच में रिएक्शन होनी शुरू हुई बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ये इस तरह से। अब इस एड्सॉर्प्शन से फ़ायदा क्या है? सिंस हाइड्रोजन इज गैस, एल्कीन इज ऑल्सो गैस, सो वंस दिस हाइड्रोजन गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? वी गेट दिस एल्केन एंड हाइड्रोजन गेट्स बॉन्डेड विद दिस वन। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकिंग, ये जो पाई बॉन्ड है टूट रहे, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एट द सेम टाइम। इससे क्या होता है? इससे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट? जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है। सो ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये हमारे कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो 2 बॉन्ड टूट रहे हैं और 2 बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वी कॉल दिस एज ट्रांजिशन स्टेट। तो हमारे पास एक 1 2 3 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एंड हमने देखा है प्योरली सरफेस फेनोमेना, एड्सॉर्प्शन इज प्योरली अ सरफेस फेनोमेना एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। क्या बन रहा है फिर इसमें? इसमें बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट। कैसा ट्रांजिशन स्टेट? 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डेल्टा H नेगेटिव है। So when we talk about rate of reaction, we say that it is inversely proportional to bulkiness. यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल बल्की होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतनी ही स्लो हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की, तो हमें मालूम है एल्काइंस ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स। द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एल्काइन इज़ मोर। रीज़न बीइंग एल्काइंस आर लीनियर। तो लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण एड्सॉर्प्शन अटैक जो है वो बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स विच हैव प्लेनर ज्योमेट्री। Another thing is when we are having the molecule, this reaction takes place, we say that it is syn addition. What does it mean? Syn addition? Syn addition means दोनों जो H atoms हैं वो दोनों सेम साइड ही ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपने इसमें D2 वन ऑफ द आइसोटोप D2 ऐड किया ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो क्योंकि ये सिन एडिशन है तो दोनों D सेम साइड में ऐड होंगे। बट इन केस अगर ये एंटी एडिशन होता तो एक D इधर जाता और दूसरा D इधर आ जाता। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज सिन एडिशन एंड वी आर हैविंग दिस इरिथ्रो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। इरिथ्रो क्या होता है आप आगे हायर क्लासेस में स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। सो सपोज आपके पास एक, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इफ़ आई आस्क यू कि आपको सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करना है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा?
सो यहाँ हमने देखा है अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, तो हमारे पास एल्कीन में एडिशन नहीं होगा, एल्काइन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, सो वी गेट दिस प्रोडक्ट। बट इन केस अगर आपको दिया गया कि हाइड्रोजन ऐड करना है, डेफिनेटली निकल यहाँ पे है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पाई बॉन्ड हैं, वो सब हटाने हैं और हाइड्रोजन को ऐड करना है। सो इफ़ नंबर ऑफ मोल इज़ नॉट मैंशनड देन यू कंसिडर एक्सेस ऑफ दिस हैज़ बीन गिवन एंड यू राइट द प्रोडक्ट दिस वे। सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, you have cycloalkene and at 1 and 2 position we are having methyl group. Now at this position if you add D2 and Ni, हमें पता है यहाँ sin addition होगा, so what would be the product obtained? इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। So similarly if I give you one more question to identify the rate of reaction, say you have ethene with hydrogen atom, say you have 1 methyl with all other 3 hydrogen atom, you have 2 methyl and both methyl are on cis position, and if you have both methyl at trans position, and now if you have 3 methyl together, 1 2 and 3, and if you have 4 methyl in place of hydrogen atom, you have all 4 are methyl groups, तो ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो हमने अभी पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है बल्कीनेस पे इन्वर्सली, यानी जितना ज़्यादा बल्की होगा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन तो इसमें हुई जिसमें 4 मिथाइल ग्रुप हैं, फिर 3 मिथाइल ग्रुप हैं। अब बात आती है इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो जिसमें मिथाइल ग्रुप 2 हैं, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो जहाँ हमारे पास सिस एडिशन है, यानी हमारे पास सिस मॉलिक्यूल है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। सो हमारा जो सिस है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा ट्रांस। अब आंसर क्यों भाई, रीज़न क्या है, बिकॉज दीज 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन अपोजिट डायरेक्शन, सो अटैक ईजी हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे। एंड देन अगेन वी आर हैविंग 1 मिथाइल एंड लास्ट इज वी हैव नो मिथाइल ग्रुप। सो जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक है। After this, next we'll talk about the next method of preparation is Woods reaction. So when we talk about Woods reaction, we say that कि इसमें alkyl halide आपने ली, you add sodium in presence of dry ether which acts as a solvent, बिकॉज सोडियम के साथ आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते, पोलर सॉल्वेंट्स के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या होता है, ये R जो है इसी R से रिएक्ट कर जाता है एंड वी गेट NaX के 2 मोल्स। दिस इज़ अप्लाइड फॉर अल्काइल हैलाइड्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो एक बहुत कॉमन मैकेनिज्म है, दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, होता क्या है, रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि जो आपके पास RX है वो टूट जाता है R फ्री रेडिकल और X फ्री रेडिकल में, ठीक है। और ये R फ्री रेडिकल आपस में ही एक और R फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के R बना देता है। X फ्री रेडिकल का क्या होता है, ये जो X फ्री रेडिकल है, सोडियम जो हमने ऐड किया, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वी नो दैट इट इज़ metal, it has tendency to lose electrons, so once it loses its electron it becomes sodium cation। X ने फ्री रेडिकल ने इस इलेक्ट्रॉन को लिया and it becomes X minus, Na plus था, X minus था, these two react and we get NaX। so this is how we get alkane where we get double the number of carbon atoms, ठीक है। जितने भी आपने सपोज मिथाइल लिया है आपने अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ इथेन बन जाएगा, आपने ब्यूटाइल लिया है तो ऑक्टेन बन जाएगा, मीन्स वी गेट डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट इसकी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनाने जाते हैं तो मुश्किल होती है, ठीक है। कैसे मुश्किल होती है, सपोज़ आपने लिया एक मॉलिक्यूल जिसमें आपके CH3Cl है और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया जिसमें आपके C2H5Cl है, आपने Na के 2 मोल ऐड किए, ड्राई ईथर लिया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली प्रोपेन बनेगा,
बट इसके साथ साथ मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया, क्योंकि एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल तो डाला नहीं है। कम से कम अगर आप 5-10 ग्राम भी लोगे तो उसमें मिलियंस मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। Similarly, this molecule when react with ethyl chloride, we get butane. So if we want to prepare odd number of alkane, the problem is we get mixture of alkane using Woods reaction. So this is one of the drawback of Woods reaction कि हम odd number of alkanes को यहाँ prepare नहीं कर पाते हैं. At the same time हम मीथेन को इस method से prepare नहीं कर सकते. We cannot prepare methane by using this method. So this is Woods reaction. और वुड्स रिएक्शन में कुछ खास चीज़ें आपको जो ध्यान देनी है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे भी बल्कीनेस या स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपके पास अलग अलग अल्काइल हैलाइड हैं तो जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन जल्दी होगी। एंड आपके पास अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं बॉन्डेड विद अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी विल रिएक्ट फास्टर क्योंकि बल्कीनेस कम है। बल्कीनेस सबसे ज़्यादा टर्शरी में होगी, ज़्यादा कार्बन एटम्स, सो जितना कम बल्कीनेस उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सपोज जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपने यहाँ Cl लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ हमारे पास एक फ्री रेडिकल बना, यहाँ एक फ्री रेडिकल, ये दोनों जुड़ गए तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिपेयर। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। आफ्टर वुड्स रिएक्शन next we have is third method of preparation we have is Franklin reaction. Franklin reaction की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। आपने अल्काइल हैलाइड लिया और जिंक ऐड किया, दो मॉलिक्यूल जैसे ही लिए तो यहाँ से जिंक हैलाइड अलग हो गया एंड वी गेट RR. सो वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, यहाँ हमने जिंक यूज़ किया है, वुड्स रिएक्शन वी हैव यूज्ड sodium. So this is Franklin reaction where zinc halide comes out. Another method of preparation we have is Core-House synthesis. This is the method of preparation for alkane again. And in Core-House synthesis reaction क्या होती है, आपके suppose RX है, so first thing आप इसमें ऐड करेंगे लिथियम, ठीक है, जिससे बनेगा RLi. सेकेंड आप ऐड करेंगे इसमें कॉपर क्लोराइड, जिससे आपके पास बनेगा R2CuLi. दिस इज नोन एज गिलमैन्स रिएजेंट। R2CuLi आपने जो ऐड किया उससे आपके पास बना गिलमैन्स रिएजेंट। सो इन कोरे-हाउस सिंथेसिस आपके पास आया RX, आपने उसमें Li ऐड किया, इट बिकम्स RLi। कॉपर क्लोराइड लिया, इट फॉर्म्स R2CuLi, गिलमैन्स रिएजेंट। अब क्या हुआ, अब इस गिलमैन्स रिएजेंट में ये जो आपके पास R2CuLi है इसमें आप एक नया R ऐड करेंगे, वो डिफरेंट हो भी सकता है, सेम हो भी सकता है, R'। ठीक है, क्या होगा उससे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक R इसका, एक R इसका, R और R' एल्केन बनेगा। बाकी क्या बचा, क्योंकि आपके पास दो R थे तो R2Cu एक अलग बन गया और Li X के साथ रिएक्ट कर गया। दिस इज कोरे-हाउस सिंथेसिस। सो बेसिकली जब भी आप RX लेंगे और R' लेंगे तो एक R इसका और एक R इसका लेंगे, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपने अल्काइल हैलाइड के लिए, तो जो आपके पास गिलमैन्स रिएजेंट का R है और अल्काइल हैलाइड का R है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड वी गेट द प्रोडक्ट। सो दिस इज कोरे-हाउस सिंथेसिस। Next method of preparation is from carboxylic acids. So when we talk about carboxylic acid, हम यहाँ पे कोई भी carboxylic acid लेंगे और उसको easy react करने के लिए हम उसका salt बना लेंगे, कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब क्या होगा, अब इसमें से अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करें तो we call the process as decarboxylation. So this process basically decarboxylation of carboxylic acid salt. What is decarboxylation? D stands for removal of carboxyl group. So removal of carboxyl group is decarboxylation. कैसे होता है? ये होता है सोडा लाइम से। Now what is soda lime? So soda lime is caustic soda plus quicklime. So when we take this caustic soda and quicklime, we call it as soda lime. आपने RCOONA लिया
आपने इसमें NaOH ऐड किया, आपने इसमें CaO ऐड किया, टेम्परेचर दिया, क्या होता है Na2CO3 निकल जाता है, दिस कंपाउंड कम्स आउट। सो एक प्रोडक्ट तो बना आपका Na2CO3, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना जो बचा RH। सो एल्केन बनता है विद डिसेंट ऑफ सीरीज, मीन्स जितने कार्बन थे एक कार्बन कम हो जाएगा, सो वी गेट एल्केन। जैसे सपोज आपने प्रोपेनोइक एसिड में NaOH एंड CaO डाला, पहले NaOH से रिएक्ट करके RCONa बन जाएगा, एंड फिर ये दोनों रिएक्ट करके एक बनाएंगे, आपके पास 3 कार्बन थे, 2 कार्बन का एल्केन प्लस Na2CO3। सो दिस इज हाउ एल्केन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मैथड। Now after this we'll talk about the physical properties. So these are about the methods of preparation. Now next heading we have is physical properties of alkanes. So first point when we talk about physical properties is boiling point. So when we talk about boiling point, तो पहली चीज़ क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव है और इनमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। लाइक इनिशियल जो मेंबर्स हैं वो तो गैसेस ही हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अप टू लाइक C1 to 4 जो हैं वो गैसेस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप लोग जानते हैं गैसेस हैं। C5 से हम C17 तक जाते हैं तो ये लिक्विड्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ रहा है वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, सो दे कम क्लोजर, बिकम्स लिक्विड। फिर C18 ऑनवर्ड जब हम जाएं तो ये सॉलिड हो जाते हैं, मीन्स जब गैसेज हैं लिक्विड है तो वैसे ही इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, सो दे हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है एंड दैट इज़ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, बट अगर मोलर मास सेम है, मोलर मास सेम है तो ये ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे कि इसमें 4 कार्बन एटम है, इसका मोलर मास डेफिनेटली ज़्यादा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बट इफ़ आई गिव यू 5 कार्बन एटम्स straight chain, 5 carbon atoms with 1 branching and 5 carbon atoms with 2 branching. So जैसा कि मैंने बताया कि मोलर मास अब तीनों का सेम है बट ब्रांचिंग डिफरेंट है, तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया कम होता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो दिस इज़ द ऑर्डर फॉर दीज 3 कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, एंड देन दिस वन। ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव इज मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट भी मोलर मास पे ही डिपेंड करता है, बट एट द सेम टाइम ये सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल कैन फिट बेटर इन द लैटिस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा ऑसिलेशन या ऑल्टरनेशन इफेक्ट आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग है, एंड आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है। सो इन 5 मेंबर्ड रिंग मीन्स ऑड नंबर, इन 6 मेंबर्ड रिंग मीन्स इवन नंबर। आप देखते हैं कि ऑड नंबर में जो टर्मिनल एटम्स हैं वो सेम साइड पे हैं, तो जब टर्मिनल एटम्स सेम साइड पे होते हैं तो जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल पास आने की कोशिश करता है तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स रिपेल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पास नहीं आ पाता, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि सिमेट्री बिगड़ गई। यहाँ पे क्या है, टर्मिनल एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड, सो व्हेन दे आर इन अपोजिट साइड तो अनदर मॉलिक्यूल व्हेन कम ना दे फिट बेटर इन द क्रिस्टल, बहुत पास आके उनके साथ फिट हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, सो दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द रिपल्जन ऑफ दीज टर्मिनल ग्रुप्स। यहाँ ऐसा नहीं है, सो सिमेट्री यहाँ बेटर है, तो डेफिनेटली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। अब आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट तो इसलिए भी ज़्यादा है कि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, बट इफ़ यू कंपेयर दिस 5 कार्बन एटम विद 4 कार्बन एटम देन ऑल्सो 4 वाले का मेल्टिंग पॉइंट 5 से ज़्यादा होगा।
रीज़न इज सेम कि यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एटम्स अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड होने के कारण उनकी सिमेट्री बहुत अच्छी है. सो व्हेन वी आर यूजिंग और कंसिडरिंग दिस, तो हमने देखा ये जो 5 है ऑड वाला, वो 6 से तो कम है ही है, बिल्कुल होना चाहिए मोलर मास के बेसिस पे, बट एट द सेम टाइम 4 से भी कम आ रहा है. रीज़न बीइंग इज इन 4 सिमेट्री इज़ बेटर देन 5. बट अगर आप इस 5 को 7, 8 या 2 से कंपेयर करें तो कंपैरिजन नहीं होगा. सो दिस इज कंपेयर्ड ऑन दिस फेनोमेना, ऑल्टरनेशन इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली फॉर नेक्स्ट लोअर और हायर होमोलॉग. कंसेक्यूटिव में ही एप्लीकेबल होगा, हर एक पे एप्लीकेबल नहीं होगा. वी कॉल दिस इफेक्ट एज ऑल्टरनेशन इफेक्ट, जिसमें ऑड वाले कार्बन एटम्स के मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर के नेक्स्ट और लोअर और हायर होमोलॉग से कम होते हैं. तो हमने देखा इवन का यहाँ ज़्यादा, इवन का यहाँ ज़्यादा, ऑड के कम है. रीज़न मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी. So third chemical property is solubility. So when we talk about solubility, हम दो चीज़ें कंसिडर करते हैं solubility में. One rule is like dissolves like. What does it mean? It means कि solvent polar है तो solute भी polar होगा, तो दोनों dissolve हो जाएंगे. If solvent is non-polar तो solute भी non-polar होगा, तो दोनों dissolve हो जाएंगे. But with opposite nature, they do not dissolve with each other. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी वाटर से, सो वाटर तो है पोलर एंड दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये है नॉन पोलर. ठीक है, तो नॉन पोलर है तो हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इज देयर एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल? अल्केन्स में ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है. एंड ये नॉन पोलर भी है बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो दोनों ही फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है. एंड दस अल्केन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्यूबल. सो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि अल्केन्स जो है इनसॉल्यूबल है बिकॉज दे आर नॉन पोलर, फर्स्ट थिंग, एंड वाटर इज पोलर. सेकेंड थिंग इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड. लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी वी टॉक अबाउट डेंसिटी. And when we talk about density, we say that it is directly proportional to molar mass. Though alkanes are having very low density, and that density increases with increase in number of carbon atoms. बट मैक्सिमम जो हाईएस्ट डेंसिटी जा रही है वो सिर्फ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जा रही है. व्हाट डज इट मीन? ये सारे वाटर से बहुत हल्के हैं, दे ऑल आर लाइटर देन वाटर. इन सबकी डेंसिटी वाटर से कम है. वाटर की कितनी होती है? 1. यहाँ हम मैक्सिमम हाईएस्ट डेंसिटी भी देख लें तो 0.8 से ऊपर नहीं जाती. आप कितने ही कार्बन एटम बढ़ा लें 0.8 पे जाके रुक जाती है. सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी of alkanes. Now we'll talk about chemical properties of alkanes. So our next topic is chemical properties of alkanes. थोड़ी देर पहले हमने बात की थी alkanes are known as paraffins, means they are very less reactive. And since they are very less reactive तो इनका reaction बहुत slow होता है. But there is some characteristic reaction shown by alkane and we call it as substitution reaction. और सब्सटीट्यूशन में भी कौन सी देते हैं? ये देते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सो दे रेडिली अंडरगो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. क्या होता है इसमें? जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है CH4, अल्केन है, आपने इसमें हेलोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, वी गेट CH3Cl एंड H हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड बाय वन ऑफ द क्लोरीन. H हटा, क्लोरीन आ गया. सो रिएक्शन क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन हैलोजेंस के लिए होगी, फ्लोरीन सबसे इजीली रिएक्ट करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. सो यहाँ ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म. व्हाट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस हियर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन से आपने H न्यू ऐड किया. H न्यू इज द सिंबल ऑफ लाइट, तो क्लोरीन डिसोसिएट्स इनटू फ्री रेडिकल्स. वंस इट डिसोसिएट्स इनटू फ्री रेडिकल्स, आपने अब CH4 इसमें ऐड किया. CH4 इस क्लोरीन को तोड़ता है और CH3Cl बना सकता है, जिसमें एक H फ्री रेडिकल बन जाए, या पॉसिबिलिटी है कि ये CH3 फ्री रेडिकल बन जाए और HCl बन जाए. इट मे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स. सो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को
कन्वर्ट कर रहा है, बना रहा है। फिर क्या होगा, जब बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते चले जाते हैं, एट द एंड दीज फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन विद ईच अदर। जैसे आपके पास बना एक CH3, एक आपके पास Cl, सो दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म CH3Cl। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो ये जो पूरी रिएक्शन है 3 स्टेप्स में हो रही है। अगर आप देखें, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें इनिशिएट हो रहा है रिएक्शन, वी कॉल इट एज चेन इनिशिएशन स्टेप बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप में एक फ्री रेडिकल बना, उसने एक और फ्री रेडिकल बना दिया। सो वी कॉल इट एज प्रोपेगेशन स्टेप। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुई तो प्रोपेगेट होनी शुरू हो गई, चलती जा रही है, प्रोपेगेशन स्टेप। एंड थर्ड लास्ट स्टेप इज जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंपेयर करेंगे, सो वी कॉल इट एज टर्मिनेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ आके रिएक्शन रुक जाएगी। इट फॉर्म्स अ स्टेबल मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन टर्मिनेट्स हियर। सो द होल मैकेनिज्म divided into 3 steps. One is initiation, where free radicals are formed. Second is propagation, where one free radical forms different more free radicals. And last is termination, where 2 free radicals combine to form a neutral molecule. So this is how the reaction takes place. Next chemical property we'll talk about is oxidation. Second chemical property is oxidation reaction. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम यहाँ देखते हैं कि आपके पास मीथेन है, इसमें O2 डाला, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो CO2 प्लस H2O बन गया। और पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, CO प्लस H2O। भाई आपके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो वी गेट CO2 प्लस H2O। इफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट देन वी गेट CO प्लस H2O। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। अगर आप ऑक्सीडेशन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, we call it as catalytic oxidation. Since suppose you are using some catalyst oxidation के लिए, तो different catalysts will form different product. Suppose आपके पास मीथेन है, आपने उसमें ऑक्सीजन डाला in presence of copper as catalyst. रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा मिथेनॉल। कॉपर ने इसको ऑक्सीडाइज किया एंड एड OH group to it. But in case of copper you are using molybdenum oxide, तो आपके पास रिएक्शन अल्कोहल में नहीं रुकेगी, रिएक्शन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना लेगी। सो टेकिंग सेम बट यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज आइसोमेराइजेशन। What does it mean? Isomers are formed. So suppose आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, से ब्यूटेन, इसमें आपने एक रिएजेंट डालना। बच्चों रिएजेंट ध्यान रखना, आपको रिएजेंट में गड़बड़ कर दी तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। सो ये ब्यूटेन था, इसका आइसोमर बन गया आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो आइसोमराइजेशन इज डन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl at high temperature around 100 degrees Celsius and we get isomer. So this process of isomerization takes place for increasing the octane number. So it is basically used in petroleum industries, जहाँ आप मॉलिक्यूल के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में ये काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एरोमेटाइजेशन। When we talk about aromatization, we say that one molecule or aliphatic compound converts into aromatic compound. So suppose आपने हेक्सेन लिया, 1 2 3 4 5 and 6, this is हेक्सेन। आपने इसमें कोई कैटलिस्ट डाला, से क्रोमियम का ऑक्साइड या वेनेडियम का ऑक्साइड डाला, उसको हीट किया। हीट करने से फर्स्ट इट चेंजेस इनटू साइक्लिक फॉर्म, एंड साइक्लिक फॉर्म को आपने डिस्टिलेशन किया विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच वी कॉल एज डिहाइड्रोजनेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विच इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. So this is how aromatic compound can be easily prepared. Next chemical property we have is pyrolysis. Pyro means fire या heat, lysis means टूटना. So when we are breaking or decomposing any compound by applying heat, we call it as pyrolysis. इसमें क्या होता है, एक बड़े मॉलिक्यूल को आपने लिया, सपोज आपने हेक्सेन ले लिया C6H14, आपने इसको हीट किया.
सो हीट करने से इसके बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक की हाइड्रोजन अलग हो जाए तो ये एल्कीन बन जाएगा। पॉसिबिलिटी है इसमें कि आपके पास C4H8 बन गया, कितने 2 कार्बन बचे, C2H6। पॉसिबिलिटी है इसमें कि आपके पास C3H6 बन गया और आपके पास C2H4 रह गया, 3 2 5 और 1 6। So any type of such possibility can takes place and we get different product. Depends on what temperature conditions we are applying. So this is how we break the compound, we decompose compound on application of heat. So we call it as pyrolysis. So bachcho, this is all about alkanes. So here we have included what alkanes are, the classification of hydrocarbon, and at the end we have discussed all the preparation methods of preparation, physical properties and chemical properties of alkanes. So go through it once. Wish you all the best for your exams, and please like this video and subscribe the channel. Thank you.